done. Few I'll do with you. Then we'll start with literature again. Is doing literature today? No, we are doing literary terms. So I have, a list of very important literary terms which are important to understand the literature, and you may get questions from these terms, right? They can ask you definitions, they can ask you with examples. It's a bit difficult to, recognize a line of poem or a passage from a novel and find out the term, which term it is. But yes, if you get a question on the definition, it will be a very easy one, because if you are studying these literary terms, you will get to know that okay, what are the features of this term. So for both the point of views, like to understand literature as well as to get answers of those questions which will be from this area, it's important to study literary terms, right? So basically, when someone start studying literature for UGC net, that person should know the basic terms, basic literary terms, so that whenever we are studying that okay, Geoffrey Chaucer has done this, or this person has written this kind of novel. So if we know the features, who started this prior, then it will be easier for us to understand that, right? So for that reason we are doing literary terms. So I will not be teaching you all the literary terms, but yes, a few which are really very important. So a lot of people ask me questions about it, what is a narrator, and why a narrator is called an omniscient, yeah, why a narrator is called a default narrator. So there are a lot of terms which we will be coming in front, and we need to understand those concepts first, so that we will be able to understand the main works of those authors who has started this, or who are using these terms in their works. Like we have already done Byronic hero, Byronic hero, when we were doing Lord Byron in Romantic Age. So there are such other similar terms which are important. Okay. So today, the first term which we are going to discuss is anticlimax. So we all use this word कि climax आ रहा है ना? Whenever we watch movie, so this is the climax. So anticlimax is kind of similar term in literature. Okay, let me share the full screen. Somebody complained me that I cannot see the words. Okay. So, anticlimax is a term which is used to describe a disappointing term of events that occurs when tension builds in a text. So, what does it mean? Like there is an example. एक example है कि horror movies में कई बार क्या होता है कि हमें पता है कि ये horror movie है, हम देख रहे हैं. So एक लड़की है, वो एक दरवाजे के पास खड़ी है और वो उस दरवाजे को खोलना चाहती है, बट बैकग्राउंड कुछ ऐसा है कि हमें लगता है कि कुछ ना कुछ बहुत डरावना निकलेगा, उस लड़की को अंदर नहीं जाना चाहिए. हम बाहर बैठे स्क्रीन पे क्या कह रहे होते हैं, स्क्रीन से बाहर कि अरे मत जा अंदर, कुछ होगा मत जा. सो बट जब वो दरवाजा खुलती है तो कुछ नहीं निकलता, बस एक बिल्ली बाहर आती है और बहुत ही नॉर्मल सा कुछ होता है. सो दैट इज एंटी क्लाइमैक्स. मीन्स you are expecting something and from the situation, and you are disappointed. So anti climax is कि जो हम expect कर रहे हैं वैसा हो नहीं रहा है, कुछ बहुत trivial सा हो रहा है, हम कुछ बहुत सुपर डुपर समझ रहे हैं. जैसे अगर किसी हीरो को सपोज एक विलन ने, कॉमेडी नहीं है, सपोज एक ट्रेजेडी हम देख रहे हैं, किसी हीरो को एक विलन ने किडनैप कर लिया है, एंड फिर हमें लगता है कि इसके साथ अब ये बहुत कुछ बुरा करेगा, या उसकी बिलवेड को किडनैप कर लिया है, तो हमें लगता है दैट ही विल ट्राई टू डू समथिंग, और वो क्या करता है, उसके साथ कॉमेडी करके मजाक करके छोड़ देता है, कुछ नहीं करता. सो दैट इज एंटी क्लाइमेक्स. सो सच काइंड ऑफ थिंग्स आर एंटी क्लाइमेक्स. लाइक इन द रेप ऑफ द लॉक, there are two lines where Pop has used this anti-climax.
तो उन्होंने इन 2 लाइन्स में क्वीन एन, जो उस टाइम पे इंग्लैंड की क्वीन थी, उसके बारे में उनको उनकी प्रेज में 2 लाइनें लिखी हैं। हियर दाउ ग्रेट एना whom 3 realms obey, those sometimes counsel take and sometimes tea. So अब उसने शुरू तो बहुत अच्छे से किया है क्वीन की तारीफ में कि तुम एक बहुत महान रानी हो, तुम्हें 3 रियल ओबे करती हैं, हर कोई तुम्हें ओबे करता है, सारे जो काउंसिल हैं वो तुम्हारे पास मीटिंग करने आते हैं, तुमसे सलाह लेने आते हैं। लास्ट में उसने सिर्फ ये समटाइम्स टी जो ऐड करके उसने क्या एक्सप्लेन करा, उसे टी कस्टम्स, जो आफ्टरनून टी जो कि जनरली हाउसवाइफ्स या इन लोगों के साथ एट्रीब्यूट किया जाता है, उसने एक रानी के साथ इस चीज को डिस्कस किया है। तो इस वजह से शुरू से जब हम उसे देख रहे हैं तो वो क्या है, क्लाइमेक्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं, बट एकदम से वो एंटी क्लाइमेक्स बन जाता है। मतलब वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग वेरी ग्रेट कि क्वीन एन की बात हो रही है, बहुत अच्छा चल रहा है, बट एट लास्ट वो क्या करता है, उसे एक बहुत ही ट्रिवियल सी माइनर सी चीज के साथ इन्वॉल्व कर रहा है क्वीन को। तो वहां पे क्या हो गया, एंटी क्लाइमेक्स हो गया। ठीक है, तो आई होप आप और ज्यादा एग्जांपल्स इसके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं हो रहा, तो एंटी क्लाइमेक्स। एंटी हीरो कौन होता है? एंटी हीरो समझने के लिए हमें 2-3 और टर्म्स समझनी पड़ेगी। सबसे पहले प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट क्या होता है? प्रोटैगनिस्ट होता है कोई भी लीड कैरेक्टर, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, दैट इज कॉल्ड प्रोटैगनिस्ट, चाहे वो पावरफुल है चाहे नहीं है। हीरो कौन होता है? हीरो होता है जो प्रोटैगनिस्ट भी हो सकता है, मेनली वो प्रोटैगनिस्ट ही होता है, बट उसके अंदर कुछ अच्छी, बहुत अच्छी क्वालिटीज होती है। ठीक है, फिर होता है एक ट्रैजिक हीरो। ट्रैजिक हीरो होता है कि जो हीरो वाली क्वालिटीज के साथ पैदा होता है, बट उसके अंदर एक फैटल फ्लो होता है, यानी कि उसके अंदर कोई ना कोई, उसके अंदर कोई डिसीजन लेने में कमी है, या वो कावर्ड है, या कहीं ना कहीं उसके अंदर एक फ्लो है, तो उसकी वजह से उसके साथ कुछ ना कुछ ट्रेजेडी होती है, दैट इज कॉल्ड ट्रैजिक हीरो। राइट, अब एंटी हीरो क्या है? एंटी हीरो कहीं ना कहीं इन सारे गुणों को लेके बैठा है। एंटी हीरो प्रोटैगनिस्ट भी हो सकता है, एंटी हीरो जो है उसके अंदर एक फैटल फ्लो भी हो सकता है, बट वो हीरो नहीं हो सकता। हीरो के अंदर हमेशा बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज होती हैं, बट एंटी हीरो के अंदर ऐसा जरूरी नहीं है कि अच्छी क्वालिटीज हो। सो एंटी हीरो को बेसिकली ट्रेजिक हीरो के साथ कंपेयर किया जाता है। बट ट्रेजिक हीरोज कौन होते थे? ग्रीक ड्रामा में, एंशियंट ग्रीक ड्रामा में, या फिर हम शेक्सपियर के प्लेस देखें, जैसे कि हैमलेट है, हैमलेट के अंदर सारी हीरो वाली क्वालिटीज हैं, वो प्रोटैगनिस्ट भी है, बट वो क्या है, एंटी हीरो नहीं है, ट्रेजिक हीरो है। उसके अंदर एक डिसीजन ना लेने की एक फ्लॉ है, टू बी और नॉट टू बी, जो मेन उसकी लाइन है कि मैं करूं कि नहीं करूं, बदला लूं कि नहीं लूं, जिसमें कि वो लेट हो जाता है, जिसकी वजह से उसको लास्ट में उसकी भी डेथ हो जाती है। इसी तरह से मैकबेथ है, उसके अंदर लालच है गद्दी लेने का, ही इज ए हीरो, वो बहुत स्मार्ट है, उसके अंदर हीरो की सारी क्वालिटीज हैं, बट वो क्या है, एक ट्रेजिक हीरो है क्योंकि उसके अंदर लालच आ जाता है। सिमिलरली किंग लियर, किंग लियर की अगर हम बात करें, उसके अंदर भी एक फैटल फ्लो है, उसके अंदर एरर ऑफ जजमेंट है, वो अपनी रियल जो उसकी प्यार करने वाली बेटी है उसको नहीं समझ पाता, क्लॉडिया को। इसी तरह से बहुत सारे ट्रेजिक हीरोज हैं, जैसे कि इडिपस है, अगर हम ग्रीक लिटरेचर उठाएं तो वहां पे। बट एंटी हीरो क्या होता है? एंटी हीरो ट्रेजिक हीरो के जैसे ही होता है, बट उसमें एक डिफरेंस होता है कि वो उसके अंदर बहुत ज्यादा ग्रेट क्वालिटीज नहीं होती, उसके अंदर क्वालिटीज होती हैं बट ग्रेट क्वालिटीज नहीं होती। वो एक हीरो की तरह जनता के बारे में नहीं सोचता। जैसे हीरो क्या होता है, वो कुछ ना कुछ सोसाइटी का बेनिफिट सोचता है, बट जो एंटी हीरो होता है वो सेल्फिश हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो देखने में स्मार्ट हो, जैसे हम मूवीज में देखते हैं जो हमारा हीरो होता है वो जनरली स्मार्ट होता है। अगर कोई स्मार्ट नहीं है तो हम ये कहते हैं ये कैसा हीरो ले लिया इन्होंने। जैसे अगर आपने वो वाली मूवी देखी हो, आई डोंट नो द नेम, जिसमें साउथ इंडियन एक हीरो लिया हुआ है, और आई डोंट नो वो उसमें रिक्शा ड्राइव करता है, और मुझे वो मूवी का नाम याद नहीं आ रहा, जब याद आएगा तो मैं मैसेज करूंगी। ठीक है, तो एंटी हीरो क्या होता है, वो परफेक्ट नहीं होता, हैंडसम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, जरूरी नहीं है कि वो हैंडसम हो, शॉर्ट हो सकता है, फैट हो सकता है, लंबा, बहुत ज्यादा लंबा हो सकता है। सो हीरो जो है वो प्योर होता है, उसके अंदर एक कुछ अच्छा सोसाइटी के लिए करने का एक हमेशा एक जुनून होता है, वो जो भी करता है जस्टिस के लिए करता है। बट एक एंटी हीरो है, उसको इन सारी चीजों से कोई मतलब नहीं होता है। अब हम इसको अगर और अच्छे से समझे तो एग्जाम्पल से समझेंगे कि एंटी हीरो है कौन। एंटी हीरो कहीं ना कहीं कॉमन मैन से रिलेट करता है।
कॉमन मैन क्या होता है, जैसे हम लोग हैं, हमारे अंदर बहुत सारे फ्लॉज होते हैं, हम हीरो नहीं होते, ठीक है। हम अपना टैक्स बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हम एक टाइम अपने फायदे के लिए सोच के ये सोच सकते हैं कि अच्छा सबने यहाँ कूड़ा डाला हुआ है, हम भी डाल देते हैं। तो ये जो छोटे छोटे फ्लॉज होते हैं ना, इससे एंटी हीरो बनता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, ग्रेट गैट्सबी। ग्रेट गैट्सबी का जो समरी है वो सबने पढ़ाई होगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे फोर श्योर क्वेश्चन आता है। सो ग्रेट गैट्सबी में जो गैट्सबी है, देखो वैसे तो इसका जो नरेटर है वो कोई और है, बट जो ग्रेट गैट्सबी है या गैट्सबी है, उसके अंदर सारी एंटी हीरोज वाली प्रॉपर्टीज हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो, उसके बहुत ज्यादा बड़े बड़े ड्रीम्स हैं, और वो ग्रीडी है, वो अपनी ग्रीडीनेस के कारण कुछ भी कर सकता है। और बट चाहे वो जैसा भी है, वो हमेशा अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करता है पूरे नॉवल में कि जो जनता है, जो भी रीडर हैं, उनको हमेशा उसके लिए सिंपैथी होती है। एट लास्ट भी जब गैट्सबी की डेथ हो जाती है या वो फंस जाता है, या जब उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ मतलब रिलेशन नहीं रखती, वो किसी और से शादी कर लेते हैं, तब भी हमें जो गैट्सबी है उसकी बुराइयां इतनी नजर नहीं आती। सो ये होता है एंटी हीरो, जहाँ पे एक हीरो के अंदर सारी हीरोज वाली क्वालिटीज ना होके कुछ क्वालिटीज होती हैं, और जो कॉमन मैन है वो उसके साथ कहीं ना कहीं खुद को लिंक करके देखता है। तो वो शेल्फिश है, मनी माइंडेड है, बट स्टिल वो एक हीरो है, ठीक है, मेन प्रोटैगनिस्ट है। तो डेनियल डिफो का मॉल फ्लैंडर्स है, उसमें जो लेडी है वो हम देखते हैं कि उसके अंदर सारे एंटी हीरोज वाले प्रॉपर्टीज हैं। जैसे कि वो कैसे उसकी जो एक डिफिकल्ट मैरिज होती है, फिर दूसरी शादी होती है, तीसरी होती है, फिर कैसे उसको स्लेव बना देते हैं, फिर वो सबको ये कहती है कि मैं एक बैड कैरेक्टर हूँ, मैं एक डकैत हूँ, है ना, आई एम ए डिकॉइट, और मैं सबको लूट लूंगी। एट लास्ट हमें जाके उसके बारे में कुछ बहुत अच्छा पता चलता है, दैट शी इज लिविंग अ गुड लाइफ। इसी तरह से सैमुअल बेकेट के दोनों ही कैरेक्टर, दीदी एंड गोगो, हम कह सकते हैं, जो स्टेज पे कोई खास काम नहीं कर रहे, बस वो बैठे होते हैं। दे आर द प्रोटैगनिस्ट बट दे आर एंटी हीरोज, उनके अंदर कोई भी हीरो वाली क्वालिटी नहीं है, बस वो बैठते हैं। व्लादिमीर नाबोकोव रशियन नॉवलिस्ट हैं, जिनका एक बहुत फेमस प्ले है, सॉरी बहुत फेमस नॉवल है लॉलिता, जो कि अगेन हमें इस चीज के फीचर्स को दिखाता है। नेक्स्ट है बायरॉनिक हीरो। बायरॉनिक हीरो कौन है? बायरन ने जिस हीरो को क्रिएट किया उसको बायरॉनिक हीरो कहते हैं। ऐसा नहीं है कि इससे पहले किसी ने बायरॉनिक हीरो जैसा कोई हीरो नहीं बनाया था, बट बायरन के बाद, बायरन ने जब इसको यूज किया, इसकी एक डेफिनेशन दी, उसके बाद ये ना पॉपुलर हो गया। तो बायरन ने सबसे पहले इसको यूज किया था चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज में, जो उनका बहुत फेमस वर्क है। दूसरा डॉन जुआन में, डॉन जुआन में जो हीरो है डॉन जुआन, वो बायरॉनिक हीरो। अब बायरॉनिक हीरो कौन होता है? वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कनेक्टेड है एंटी हीरो से। एंटी हीरो जैसी जो फीचर्स हैं उसके अंदर होते हैं। और लॉर्ड बायरन आपको पता ही है, रोमांटिक एज के बहुत ही फेमस पोइट हैं, जिन्होंने जिनकी लाइफ के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि वो खुद लाइफ में बहुत हैंडसम स्मार्ट थे, और वेमेनाइजर उनको कहा जाता है। बहुत सारी लड़कियां उनके पीछे पड़ी रहती थी, ऐसा माना जाता है कि उनके बहुत सारे अफेयर्स थे लाइफ में। और तो जो उनकी खुद की लाइफ के फीचर्स हैं उन्होंने अपने बायरॉनिक हीरोज में डाले हैं। तो बायरॉनिक हीरो कैसा होता है? वो कनिंग होता है, रिबेलियस नेचर का होता है, ठीक है, सफर्ड फ्रॉम साइकोलॉजिकल इलनेस, उसके अंदर कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल नॉर्मलनेस नहीं होती। जैसे एक नॉर्मल इंसान बिहेव करता है वो वैसे बिहेव नहीं करता, या तो उसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, या फिर वो एक्सट्रीमली लविंग होता है। मतलब वो हर चीज एक्सट्रीम में होती है उसके अंदर। पैशनेट भी है, डेंजरस भी होता है, जैसे कि जॉन डुवान खुद हैं, या जैसे कि लॉर्ड बायरन खुद हैं। उनके अंदर जो खुद क्वालिटीज थी वो उन्होंने उसमें डाली है। रोचेस्टर, जेन आयर के जो है रोचेस्टर, जेन ऑस्टन का जो वर्क है, सॉरी ये जेन ऑस्टन का वर्क है, जेन आयर जेन ऑस्टन का वर्क नहीं है, सॉरी गाइस, इसको काट लेना। जेन आयर है शार्लोट शार्लोट ब्रॉन्टे का, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ। सो जेन आयर में जो रोचेस्टर है वो एक बायरॉनिक हीरो है, डार्क हीरो कह सकते हैं, एंटी हीरो कह सकते हैं, जो कि एक्सट्रीमली मेलेंकलिक है। और वो एक सॉफ्ट और लविंग मैन तो बिल्कुल भी नहीं है। जब अगर आपने जेन आयर की समरी पढ़ी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि वो जेन आयर को अच्छे से शुरू में ट्रीट नहीं करता,
है ना। ऐसा नहीं है कि उसको शुरू में ही जेन नायर से प्यार हो गया और वो उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, वो उसको एक गवर्नेंस की तरह ही ट्रीट करता है और बहुत ही वाइल्ड पैशनेट है, स्मार्ट है, बहुत सारे बड़े बड़े हीरोइंस एंड ऑल उसके साथ घूमते हैं। तो वो सारे फीचर्स हमें उसमें दिखते हैं। इसी तरह से वुदरिंग हाइट्स का जो हीरो है, प्रोटैगनिस्ट है, हिथक्लिफ, डार्क है, टॉल है, बोल्ड है, बहुत ज्यादा वायलेंट है, जो वो बदला लेता है अपनी खुद की बिलवेड के साथ, उसकी बेटी के साथ, वो सारी चीजें उसको एक बायरॉनिक हीरो में कन्वर्ट करती हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट जो टर्म है बॉर्डराइज। ठीक है, बॉर्डराइज। बॉर्डराइज जो है वो होता क्या है बेसिकली, जो एक फेमस ऑथर है थॉमस बाउल्डर बाउडलर। ठीक है, थॉमस बाउडलर ने एक काम किया था, उसने विलियम शेक्सपियर के प्लेस को लेके ना उसमें से कुछ काट छाट दिए थे सीन्स और दोबारा से उसको पब्लिश कराया था। तो उन्होंने क्या कहा था, वो कहते हैं कि विलियम शेक्सपियर के प्लेस के अंदर कुछ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो अनफिट हैं, जिनको लेडीज की कंपनी में नहीं पढ़ा जा सकता जेंटलमैन के थ्रू, राइट। तो इसीलिए इन जो सीन्स को डिलीट करना चाहिए। इसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। इसी जो जो काट छाट उन्होंने की थी, इसी को कहते हैं बॉर्डराइज। ठीक है, इसी को कहते हैं बॉर्डराइज। तो बेसिकली बॉर्डराइज क्या है, जो चीजें सोसाइटी के लिए फिट नहीं है, सपोज बच्चों के लिए कोई चीज फिट नहीं है या कल्चर के लिए जो कोई चीज फिट नहीं है, उसको किसी नॉवल से या प्ले से या पोएम से जब काट के उसको पब्लिश किया जाता है तो उसको कहते हैं बॉर्डराइज। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ गया होगा कि सेंसरशिप भी तो यही होता है। सेंसरशिप अलग है, सेंसरशिप में तो उसको बैन कर दिया जाता है, बट इसमें बॉर्डराइज करने में उस वर्क को पब्लिश किया जाता है, बट जो भी कंट्रोवर्शियल चीज है उसको हटा के। ठीक है। तो जो अननेसेसरी चीजें हैं, जो लगता है कि समाज के लिए अच्छी नहीं है, उसको रिमूव कर दिया जाता है। जैसे आपने बहुत सारी मूवीज ऐसी देखी होगी, 2001 एंड 2 के आसपास कुछ मूवीज रिलीज हुई थी इमरान हाशमी की एंड ऑल। तो एक बार के लिए उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक कमेंट्स आए थे दैट दिस इज नॉट गुड फॉर द सोसाइटी। तो इन सारी चीजों को बैन करना चाहिए। तो उनको बैन ना करके क्या किया गया था, उनमें से कुछ सीन्स को डिलीट करवा दिया गया था। अगर सेंसर कर दिया जाता तो उसको बैन कर दिया जाता, बट इसमें क्या होता है कि हम कुछ चीजों को निकाल देते हैं। जैसे कि चौसर के और जोनाथन स्विफ्ट के वर्क्स में क्या बुरा था, उन्होंने कुछ भी ऐसा अश्लील नहीं लिखा था, बट पॉलिटिकली उनके जो वर्क हैं वो कंट्रोवर्शियल थे, तो उनमें से कुछ सीन्स को हटा दिया गया था। ऐसे डीएच लॉरेंस के जो लास्ट में उनका नॉवल आया था, उसमें भी कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल सीन्स थे जिनको डिलीट करके पब्लिश किया गया था। ठीक है। तो इस टर्म का ये आता है जहाँ पे स्लैंग्स हों, ऑफेंसिव वर्ड्स हों, उनको डिलीट कर दिया जाए। या बच्चों के लिए हम किसी वर्क को, जैसे शेक्सपियर के बहुत सारे प्लेस को आज के टाइम पे बच्चों के लिए लिखा जाता है, तो उसको बॉर्डराइज करके लिखा जाता है ताकि बच्चों को वो चीज उनके लेवल से समझाई जा सके, बड़ों के लेवल का समझ उनको नहीं आएगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। कार्पेडियम नेक्स्ट टर्म है। कार्पेडियम क्या है, कार्पेडियम का मतलब होता है सीज द डे। ये आपको बहुत बार पोएट्री में आया है, बहुत सारे पोएट्स ने इस कॉन्सेप्ट को यूज किया है। ये टर्म नहीं, ये कॉन्सेप्ट होता है जहां पे हम एक वर्क में ये देखते हैं कि ऑथर हमें ये कहना चाहता है कि भैया तुम लाइफ को पूरा जी लो, लाइफ छोटी है, आज का दिन तुम ये मान के चलो कि तुम्हारे पास है और इसको तुम फुल्ली इंजॉय करो, राइट। तो सीज द डे मतलब इस दिन को पूरी तरह से इंजॉय करो, फ्यूचर का वेट मत करो कि सपोज आपको आज मन है कि मैं आज एक पेस्ट्री खा लूं, तो आप इस चीज का वेट मत करो कि मैं कल खा लूंगा या मेरा बर्थडे आएगा मैं तब खा लूंगा या एक महीने बाद मैं वहां जाऊंगा तब खा लूंगा। तो ये सेम कि जो आप करना चाहते हो, जो भी चीजें आप इंजॉय करना चाहते हो, आज कर लो, कल का वेट मत करो। तो ये जो फ्रेज है कार्पेडियम कहाँ से आया है, होरेस की बुक है, बुक 1 ओड्स नाम से उनके जो ओड्स पब्लिश हुए थे उसमें बुक 1 से आया है। लेटिन लैंग्वेज का फ्रेज है, ये हमें ध्यान रखना है क्योंकि कार्पेडियम के ऊपर 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। कार्पेडियम का मतलब उन्होंने पूछा है। ठीक है। और दूसरा फ्रेज इसके साथ मैं आपको बताती होती हूँ, मोमेंटो मोरी। ठीक है, मोमेंटो मोरी भी लेटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि यू आर मोर्टल, कि जो ह्यूमन बींग्स है वो मोर्टल हैं।
तो हमें अपने आप को इमॉर्टल ना समझ के आज के दिन में ही अपनी जिंदगी को एंजॉय करना चाहिए। सो काइंड ऑफ सिमिलर फ्रेजेस हैं दोनों, ठीक है। ओके, सो एंड्रयू मार्वेल की जो पोएम है टू हिज कोय मिस्ट्रेस, इसमें हम कार्pe diem का बहुत अच्छा इस्तेमाल देखेंगे। इस पोएम में जो पोएट है वो अपनी बिलवेड को कहता है, जो कि रिलक्टेंट है, वो नहीं चाहती लव मेकिंग, वो बहुत शाय है। कॉय का मतलब ही शाय होता है, ये भी एक क्वेश्चन आया था दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉय। कॉय का मतलब होता है शाय। सो वो अपनी बिलवेड को कहता है दैट सीज द डे, कि ये जो दिन है ये न जाने कब खत्म हो जाएंगे, कब हमारी जिंदगी का एंड आ जाएगा, इसीलिए बी इन प्रेजेंट, अपनी शाइनेस को छोड़ो और लेट मी लव। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, सोसाइटी को बॉदर करेंगे तो हमारा ये टाइम चला जाएगा, देन वी विल ग्रो ओल्ड, एंड हम जो हमारी जिंदगी है वो बहुत छोटी है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो एंड्रयू मार्वेल की पोएम बहुत अच्छे से समझाती है। इसी तरह से रॉबर्ट हैरिक का वर्क है गैदर ये रोज बर्ड्स वाइल ये में। तो ये क्या कह रहे हैं कि जब जवानी है, जब आप यंग हैं, तो इन रोज बर्ड्स को गैदर कर लो, जैसे ही ये ब्लूम होंगे ये गिर जाएंगे। यानी कि एक तरह से कंट्रास्ट है, कंपैरिजन कर रहे हैं वो रोज के साथ ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ को। ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ जब बर्ड्स होती है, यानी कि जब हम अपने यूथ लाइफ में होते हैं, जब हम यंग होते हैं, तब आपको सारे एंजॉय कर लेने चाहिए। कब ये ब्लूम हो जाएंगे और कब ये गिर जाएंगे, कब आपकी डेथ हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, एंड देन यू विल रिग्रेट एट योर डेथ बेड कि मैंने अपनी जिंदगी तो एंजॉय करी ही नहीं, राइट। नेक्स्ट है सेल्टिक मिथ। सेल्टिक मिथ क्या होती है? सेल्टिक मिथ जो मिथ्स हैं वो आए हैं आयरलैंड से। तो आयरिश राइटर्स ने इस वर्ड को इजाद किया था, सेल्टिक मिथ। तो सेल्टिक जो नेचर हम पढ़ चुके हैं ओल्ड इंग्लिश पीरियड में, तो सेल्ट्स, CELTS, सेल्ट्स के बारे में हमने पढ़ा था, है ना। सो उस टाइम पे क्या होता था, उस टाइम पे कुछ मिथ्स थी, माइथोलॉजी थी। जैसे इंडिया में अगर हम 5000 साल पहले की बात करें तो कुछ माइथोलॉजीज थी कि ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। इसी तरह से आयरलैंड की भी कुछ माइथोलॉजीज थी। तो अब क्या होता है कि जब आयरलैंड के अंदर बहुत ही ज्यादा अत्याचार बढ़ जाता है इंग्लैंड का, तो वो लोग अपनी माइथोलॉजीज के पास वापस जाते हैं। हर कंट्री में ये होता है, जब भी कोई आपको नीचा दिखाने लगता है तो आपकी माइथोलॉजी, आपकी हिस्ट्री आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है। चाहे वो इंडिया की बात करें, चाहे अमेरिका की बात करें, चाहे हम ब्लैक लोगों की बात करें, जो अफ्रीकन लोग हैं, जब उन्होंने रेवोल्यूशन किया था तो वो क्या कर रहे थे, वो अपने पास्ट म्यूजिक के पास, अपनी माइथोलॉजी के पास गए थे, और उन्होंने अपनी मिथिकल स्टोरीज को निकाल के अपने आप को ये बताया था दैट हाउ पावरफुल वी आर, हाउ इंटेलिजेंट वी आर। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें, आज हम कहते हैं कि इंडिया में बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, उनको ये पता था कि हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो कैसा होना चाहिए। हमें आज के टाइम पे ये लगता है कि लिविंग स्टैंडर्ड तो होता है अच्छे कपड़े पहनना, टाइट कपड़े पहनना, बाहर खाना खाना, बट हमारे जो पूर्वज थे उनका क्या कहना था दैट देयर शुड बी ए पैटर्न ऑफ ईटिंग। आपको इतने बजे खाना है, आपको ये चीजें अपने खाने में सात्विक भोजन खाना है, और ये चीजें नहीं खानी है। तो व्हेन इंडिया वाज फॉलोइंग its mythologies, its ancestors, we were healthy and happy. अब फैमिली सिस्टम खत्म हो गया, अब हर चीज में वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है। इसी तरह से आयरलैंड में भी ये हुआ था। तो कुछ ऑथर्स ने 19th एंड 20th सेंचुरी में, कुछ ऑथर्स ने ये सोचा कि क्यों ना हम अपने पूर्वजों की जो मिथ्स हैं, माइथोलॉजीज हैं, उनको रिवाइव करें। तो सेल्टिक ट्विलाइट के नाम से वहां पे एक रेवोल्यूशन चला था। ट्विलाइट क्या होती है? जैसे मॉर्निंग, है ना। तो सेल्टिक ट्विलाइट के नाम से वहां पे एक मूवमेंट चला था जिसमें कि उन्होंने अपनी कल्चरल स्टोरीज को उठा उठा के लिटरेचर में, इंग्लिश में लिखा था, ताकि जो उधर की जनता है वो अपने ऊपर प्राउड फील करे और अपने आप को डाउन फील ना करे कि हम लोग किसी से कम हैं, ठीक है। तो जितने भी ये आयरलैंड के फेमस ऑथर्स हैं जो हमने मॉडर्न एज में पढ़े थे, WB यीट्स हो गए, लेडी ग्रेगरी हो गई, जेम्स फिंच, सीनो कैसी, जेम्स जॉयस, ये सारे आयरिश ऑथर्स हैं जिन्होंने रिवाइवल भी करा था किस चीज का? ड्रामा का। तो आयरिश थिएटर इन्होंने एस्टेब्लिश किया था। आयरिश थिएटर के साथ साथ ये क्या कर रहे थे? सेल्टिक रिवाइवल कर रहे थे, यानी कि पुरानी माइथोलॉजीज को लेकर आ रहे थे, गोस्ट लिटरेचर के ऊपर काम कर रहे थे, और
थिएटर के थ्रू लोगों को वो पॉलिटिकल सिचुएशंस और इकोनॉमिक सिचुएशन समझाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो ये उस टाइम का एक रेवोल्यूशन था जिसके बारे में आपको क्वेश्चन आ सकता है, दैट व्हाट इज सेल्टिक रिवाइवल या सेल्टिक मेथोलॉजी या सेल्टिक मिथ। तो ये सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। अगर इनसे क्वेश्चन आएगा तो बहुत आसान हो जाएगा। हो सकता है वो 3 या 4 पॉइंट बना के आपसे पूछ ले सेल्टिक मिथ्स, तो उस टाइम पे कंफ्यूज मत हो जाना कि ये कौन से टाइम का है। सेल्ट्स कब आए थे? एंग्लो सेक्शन पीरियड में। सेल्ट्स जो ट्राइब थी वो उस टाइम पे थी, बट यहाँ पे सेल्टिक जो मिथ्स हैं या जो ये रिवाइवल था ये 19th एंड 20th सेंचुरी में चला था, 19th सेंचुरी के एंड में और 20th सेंचुरी के शुरू में, यानी कि मॉडर्न पीरियड में, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ड्रीम विजन। ड्रीम विजन क्या होता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रीम एलिगरी। एलिगरी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एलिगरी क्या होता है? जहाँ पे हम सरफेस लेवल पे कुछ और देखते हैं बट जो इन डेप्थ उसका मीनिंग कुछ और होता है। तो इसी ड्रीम एलिगरी क्या होती है? आपने बहुत सारे चौसर की एज में ऐसे वर्क्स देखे हैं, या उसके बाद हमने कई एजेस में ऐसे वर्क्स देखे हैं जिसमें जो नरेटर है वो सो जाता है। सोने के बाद वो एक जगह पहुंचता है जहां सपने में एक विजन उसको दिखता है, एक स्टोरी दिखती है जो जिसे वो नरेट करता है। तो वो सरफेस लेवल पे कोई एनिमल, किसी आदमी या किसी आत्मा से मिलता है, बट इन डेप्थ उसका मतलब कुछ और होता है, ठीक है। तो एक नरेटर है जो एक एनिमल उसको लीड करता है कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ सपने में, और फिर वो कहीं पे पहुंच जाता है। तो बेसिकली मिडल एजेस में इसको काफी यूज किया गया था। पायर्स द प्लोमन, पायर्स गाइस ये पियर्स नहीं है, लिखते लिखते गलती हो जाती है कई बार। सो पायर्स द प्लोमन की जो बिगनिंग है वो ऐसी होती है। मेलबर्न हिल्स में जो पोएट है वो वहां पे सो जाता है और सोते सोते उसे एक ड्रीम आता है जिसमें कि उसे एक टावर दिखता है, और बहुत हाई टावर है, एंड ए हिल एंड ए फोर्ट। तो जो ये सारी चीजें दिखती हैं, हिल के ऊपर जो टावर उसे दिखा है वो रिप्रेजेंट करता है हेवन को, और जो फोर्ट रिप्रेजेंट करता है हेल को, ठीक है। तो ये जो दो चीजें हैं उसके सपने में दिखाई दी हैं, ये एलेगोरिकल है कि सरफेस लेवल पे तो हमें उसे ऐसी पिक्चर दिखाई दे रही है जिसका हेल और हेवन से कोई लेना देना नहीं है, बट एक्चुअल में जो पोएट क्या कहना चाहता है वो ये बताना चाहता है कि हमें हेल और हेवन का कंपैरिजन कैसे देखना चाहिए, ठीक है। तो एक बहुत फेमस वर्क जो हमने फॉर श्योर करना ही है, जॉन बनियन का पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, जिसमें कि जो एज आई वॉक थ्रू द वाइल्डरनेस ऑफ दिस वर्ल्ड आई लाइटेड ऑन अ सर्टेन प्लेस वेयर वाज इट देन एंड आई लेड मी डाउन टू अ प्लेस टू अस्लीप। तो यहाँ पे ड्रीम एलेगरी किसको आती है? जॉन बनियन को। तो जॉन बनियन की अगर आपको लाइफ पता है, जॉन बनियन एक रिपेयर मैन थे जो चीजों को रिपेयर किया करते थे। उनको गॉड में बिल्कुल विश्वास नहीं था, बट सडनली वन डे ही फाउंड अ विजन, एक विजन उनको दिखा जिसमें उनका ये मानना है कि मुझे भगवान के दर्शन हुए। जैसे उनकी किसी एंजल से, भगवान से मीटिंग हुई, उस दिन के बाद ही स्टार्टेड बिलीविंग इन गॉड। उससे पहले वो गॉड में बिलीव नहीं करते थे, एंड बिकॉज ऑफ हिज बिलीव्स ही वाज पुट टू जेल। उनको जेल जाना पड़ा था, और जेल में भी ही नेवर फेल्ट बैड, क्योंकि उनको ये लगता था कि वेदर आई एम फ्री और नॉट, वेदर आई एम इन अ जेल, आई एम हैप्पी बिकॉज गॉड इज विद मी एंड ही इज ऑलवेज एनलाइटनिंग माई पाथ। तो मैं एक पापी इंसान हूँ, जैसे हर संत या हर ऐसा बड़ा इंसान कहता है, डाउन टू अर्थ होता है, कि मैं एक पापी इंसान हूँ एंड गॉड इज ट्राइंग टू हेल्प मी कम आउट ऑफ माई सिंस। तो वो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस की स्टार्टिंग ऐसे करते हैं कि मैं एक डेन के अंदर था। डेन क्या है? यहाँ पे जेल। वहां पे मैं सोया हुआ था और वहीं पे मुझे एक सपना आया। किसका सपना आया? क्रिश्चियन का। सो जो क्रिश्चियन है उसकी जर्नी उन्होंने दिखाई है इस बुक में, कि कैसे वो एक सेलेस्टियल सिटी में जाना चाहता है क्रिश्चियन। यानी सेलेस्टियल सिटी किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? हेवन को। तो जितने भी कैरेक्टर्स उसको दिखते हैं, होपफुल, फेथफुल, ये सारे एलेगोरिकल हैं। तो ये होती है ड्रीम एलेगरी, ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूस एक्स मशीना। ड्यूस एक्स मशीना क्या है? इन ग्रीक थिएटर द कैरेक्टर वुड क्रिएट अ मेस in extremely difficult situation. There is a chaos and no way out or hope for a happy resolution. Then suddenly Zeus or some other gods would come on the stage and use magic to fix all the problems. तो होता क्या था कि
सपोज कोई कहानी चल रही है, ग्रीक थिएटर में इस टर्म का यूज होता था। सपोज कोई कहानी चल रही है और उसमें हीरो ने टोटल एक मेस कर दिया, अब बाहर निकलने का कोई तरीका बचा ही नहीं, हीरो की सिचुएशन इतनी बुरी है कि उसे कोई सोल्यूशन समझ ही नहीं आ रहा। तो उस टाइम पे ऑथर्स क्या करते थे, ड्रामेटिस्ट क्या करते थे, एक डिवाइन इंटरफेरेंस कर देते स्टोरी में कि एक मशीन आई, एक मशीन की तरह एक मशीन थी, ठीक है, जो ड्यू एक्स मशीना है, एक मशीन जैसा एक टम्बलर होता था जिसको वो खोल देते थे स्टेज पे और जिसमें से गॉड निकलते थे। कौन गॉड? ज़्यूस। ज़्यूस के बारे में अगर आपने पढ़ा है, ग्रीक गॉड है ज़्यूस, ठीक है। और तो ज़्यूस वहां पे प्रकट होते हैं और वो सारी प्रॉब्लम्स को फिक्स कर देते हैं मैजिक से, जो भी प्रॉब्लम हीरो की लाइफ में है। सपोज उसकी मदर को किसी ने किडनैप किया हुआ है, या उसकी जो हीरोइन है बिलविड है वो बीमार है, या किसी बच्चे को कोई ट्रबल है, सो दैट गॉड विल फिक्स दैट प्रॉब्लम एंड डिसअपियर। तो गॉड वहां से चले जाएंगे। तो अब क्या होता है कि जो बहुत सारे क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि इट्स नॉट अ गुड आइडिया, ये एक अच्छा आइडिया नहीं है इस तरह की ड्यूओ सेक्स मशीना डालने का। क्यों अच्छा आइडिया नहीं है? क्योंकि ऑडियंस के लिए कोई भी सस्पेंस नहीं होता। इस तरह से एंडिंग ये करते हैं कि हर किसी को पता है कि अब भगवान ने आ जाना है, भगवान ने सबको बचा लेना है और प्ले खत्म। तो जब उसके अंदर कोई सस्पेंस नहीं बचा और हर बार गॉड इज कमिंग टू इंटरफियर, दैट इज नॉट अ गुड आइडिया। तो ये चीज बहुत सारे जो रीसेंट क्रिटिक्स हैं या मॉडर्न क्रिटिक्स हैं उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं थी, बट उस टाइम पे ये यूज किया जाता था, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं ग्रीक प्लेस के जिसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं जो ऐसा करने की कोशिश करते हैं, जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, एंड दे कॉल गॉड एंड गॉड कम्स एंड हेल्प्स देम, राइट। तो इस टर्म को आपको याद रखना है। ऐसी अजीब अटपटी जो टर्म्स होती हैं एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट आपसे ये नहीं पूछेंगे कि मेटाफर क्या है, राइट। वो ऐसी ऐसी टर्म्स आपसे पूछेंगे जो आपने शायद कभी ध्यान भी नहीं दी होगी, है ना। नेक्स्ट है एपिफेनी। सो एपिफेनी क्या होती है? चेंज इन द सिचुएशन और चेंज इन द माइंड। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि एक आदमी को सोचो जिसने 10 साल खूब सिगरेट फूकी, मतलब वो सुबह शाम सिगरेट पीता है, और उसकी वाइफ जो है फाइनली 10 साल बाद प्रेग्नेंट हो जाती है। तो उसके दिमाग में ये थॉट आता है, जब वो ये सोच रहा था कि मेरी जो वाइफ है वो इनफर्टाइल है, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती, तो अचानक से उसकी लाइफ में एक चेंज आया और वो एग्जामिन करने लग जाता है कि यार मैं कल दिन फादर बनूंगा, मेरे घर एक बच्चा पैदा होगा, और वो इस सारी सिगरेट्स के धुएं से एक्सपोज होगा, एंड आई डोंट वांट टू बी लाइक दैट, है ना। मैं अपने बच्चे के लिए एक ऐसी सिचुएशन या ऐसी चीजें क्रिएट नहीं करना चाहता कि जो उसके लिए डेंजरस हो, ठीक है। सो उसके अंदर एक तरह का मोटिवेशन आता है, उसको एक रियलाइजेशन होती है, इस रियलाइजेशन को एपिफेनी कहते हैं। यानी कि अगर सपोज कोई इंसान पूरी जिंदगी एक काम कर रहा है, चाहे वो गलत कर रहा है चाहे सही, अचानक से उसको एक रियलाइजेशन होती है किसी भी स्टिमुलस की वजह से, कुछ भी हुआ आउटसाइड या इनसाइड, और वो फिर सडनली चेंज हो जाता है। आज तक अगर उसे 1000 लोगों ने कहा होगा कि तू इतनी सिगरेट मत पिया कर, तू बीमार हो जाएगा, मत पिया कर, तू बीमार हो जाएगा, बट उसने किसी की नहीं सुनी। बट फाइनली उसे जब खुद से रियलाइजेशन हुई दैट इट्स नॉट गुड फॉर माय बेबी, देन ही लेफ्ट इट एट वंस। उसे ना किसी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ी, ना उसे किसी ऐसे सेंटर पे जाने की जरूरत पड़ी, उसका जो मन का इरादा है वो पक्का हो गया। दैट मोमेंट इज कॉल्ड द रियलाइजेशन और द एपिफेनी, ठीक है। सो अब लिटरेचर में एपिफेनी क्या है? एपिफेनी इज ए मोमेंट इन अ स्टोरी वेयर ए कैरेक्टर अचीव्स रियलाइजेशन आफ्टर व्हिच इवेंट्स आर सीन थ्रू द प्रिज्म ऑफ द न्यू लाइट। जैसे कि जेम्स जॉयस के यूलिसिस का मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ये एपिफेनी से फुल है। अब जेम्स जॉयस का जो हीरो है स्टीफन डिडालिस, वो क्या करता है, वो अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजें ट्राई करता है, काम में वो फंसा रहता है, ठीक है। अब क्या होता है कि स्टीफन डिडालिस एक दिन बीच पे जा रहा होता है और उसे बहुत सुंदर एक लड़की दिखती है, बहुत प्यारी, बहुत सुंदर नेकेड लड़की होती है, और उसे ना उस सुंदरता से अट्रैक्शन हो जाती है। ही वाज ए टीनेजर, ऐसा नहीं है कि वो उसके साथ सेक्स करना चाहता है या कुछ, बट उसके अंदर एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, वो सोचता है कि ब्यूटी
और ब्यूटी को डिस्क्राइब करना कितना अच्छा और रिलैक्सिंग है। एंड देन ही डिसाइडेड टू बी अ राइटर। वो सोचता है कि मैं एक राइटर बनूंगा, जिस तरह से गॉड ने उस ब्यूटी को क्रिएट किया है, आई क्रिएट समथिंग वेरी ब्यूटीफुल फॉर द ऑडियंस, जिसके बाद हम ब्यूटी को एक्सप्रेस करने का एक जरिया ढूंढ पाएंगे। ठीक है, सो ही थॉट ऑफ बीइंग ए writer. So that is Epiphany. Earlier he was, busy in, he was stuck in different things in his life कि मैं ये करूं, मैं वो करूं, वो कुछ कुछ कर रहा था, and then finally something happened, उसे कुछ दिखा and he changed and he became influenced. तो अब उसको किसी पेरेंट्स को कहने की जरूरत नहीं है, उसके पेरेंट्स को या उसके दोस्तों को उसको इन्फ्लुएंस करने की जरूरत नहीं है कि तुम अपने राइटिंग करियर पे फोकस करो. He is automatically focused towards something. So that is Epiphany. Similarly, real life incidents है महात्मा गांधी का. महात्मा गांधी was born in a very rich family. He was studying outside, है ना, साउथ अफ्रीका से जब वो इंडिया आ रहे थे. Then suddenly one day those British people threw him out कि तुम जाओ, तुम ब्लैक हो, तुम हाई क्लास उसमें नहीं चढ़ सकते, तुम्हें थर्ड क्लास डब्बे में जाना चाहिए ट्रेन के. एंड ही रियलाइज्ड that what is happening with us, what is happening with Indians, and he went back to India and then he started that movement of freedom कि हमारे साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है हमारी कंट्री में. एंड दैट वाज द रियलाइजेशन थिंग. अभी तक ही वाज एंजॉयिंग लाइक अ यंग मैन. वो हमेशा से महात्मा गांधी नहीं थे. he was like a normal human being who is enjoying, who is studying law, who want to pursue a great career, जिसमें चाहे उसे अंग्रेजों के लिए काम भी करना पड़े. he was doing that, but suddenly something happened and he got a realization. That is epiphany. Fine. Next, the 10th term is epilogue. Epilogue क्या है? It is a chapter at the end of a work of literature which conclude the work. So prologue क्या होता है? Prologue होता है starting में, epilogue होता है end में. ये हमें क्वेश्चन कई बार आया है, लैंग्वेज बदल के वो हमें कंफ्यूज, सोचते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इस तरह से पूछते हैं कि स्टूडेंट्स एक्चुअल में कंफ्यूज हो जाते हैं. सो प्रोलोग होता है हमेशा जो स्टार्टिंग का चैप्टर होता है, एपिलोग होता है जो एंड में आता है. ये हमें ध्यान रखना है. एपिलोग ई से एंड याद कर लो, तो ये एंड में आता है. और which comes in the beginning. अच्छा, afterword is typically written by someone other than the author. Afterward एक अलग चीज होती है जो epilogue and prologue से अलग है. It describes how the book came into being. Suppose मैं एक किताब लिख रही हूँ, राइट, अब मैंने उसमें प्रोलोग भी दे दिया, एपिलोग भी दे दिया, बट उसमें क्या होता है लास्ट में आफ्टरवर्ड, कई बार आपने देखा होगा उसके कवर पेज पे एक ना पैसेज लिखा होता है, एक पैराग्राफ लिखा होता है आफ्टरवर्ड के नाम से, लास्ट पेज पे या फिर बिल्कुल कवर पेज पे. आफ्टरवर्ड कौन होगा? सपोज मेरे हस्बैंड उसके बारे में लिख रहे हैं, दैट हाउ आई started writing this book and who motivated me, how I get the idea of writing this, है ना. So all those things will be written there by somebody. So that is afterward. तो confuse नहीं होना. Prologue is something which I will be writing and epilogue will be something which I will be writing, but afterward will be written by somebody else. That can be my relative, that can be my friend, that can be somebody outside, from that book, one who do not belong to that book, है ना. So हो सकता है उस इंसान का जिक्र उस बुक के अंदर हो, बट वो राइटर नहीं होता. एपिलोग किस किस चीज के काम आता है? इट इज रिटन टू सेटिस्फाई रीडर्स क्यूरियोसिटी बाय टेलिंग देम अबाउट द फेट ऑफ द कैरेक्टर आफ्टर द क्लाइमेक्स. तो क्लाइमेक्स हो गया, चलो जी, स्टोरी में सपोज एक हीरो है, उसने विलन को मार दिया, एंड फिर हमारे मन में क्यूरियोसिटी होती है कि इसको हीरोइन मिली कि नहीं. हीरोइन की तो किसी और के साथ शादी हो रही थी, शादी वाले दिन ही ये सारी लड़ाई हो रही थी. तो जब हमने पूरी मूवी देखी, एट लास्ट हमारे मन में होता है कि भैया आगे क्या हुआ, उसको हीरोइन मिली कि नहीं. तो मूवी कई बार वहीं एंड हो जाती है. बट एपिलोग क्या करता है? एपिलोग हमें आफ्टरवर्ड्स की कहानी बताता है कि उसके बाद हीरो जो है वो गया और फिर हीरोइन ने मना कर दिया था दूसरे लड़के से शादी करने के लिए, एंड शी वाज वेटिंग फॉर हिम इन हिज हाउस, एंड वो वहां पे जाता है, एंड आफ्टर 30 years दे आर ग्रोइंग ओल्ड टुगेदर. कैसे वो लोग अपना आगे का लाइफ उन्होंने जिया. सो ऑल दोज थिंग्स विल बी एक्सप्लेन्ड इन एपिलोग समटाइम्स. ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं. ग्रीक प्लेज में एपिलोग को यूज किया जाता था
where a character comes forward and directly talk to the audience and also express gratitude for watching the play. So दोनों तरह से एपिलॉग ही है. एपिलॉग एक प्ले में भी हो सकता है, एपिलॉग एक नॉवल में भी हो सकता है. तो ग्रीक प्लेज की बात है. ग्रीक प्लेज में एपिलॉग कैसे होता था कि एक कैरेक्टर आगे आएगा, ऑडियंस से बात करेगा, ऑडियंस को बताएगा कि हीरो बिल्कुल फाइन है या ऐसा हो गया था. चाहे वो हमें एक्ट करके ना दिखाएं, हीरो हीरोइन हमें एक्ट करके ना दिखाएं, बट some character will come and tell us. ठीक है, जैसे मिडसमर नाइट ड्रीम में शेक्सपियर के उसमें होता है कि जो पक है, पक कौन है, एक मैजिशियन है जो सबके आंखों पे वो लिक्विड लगाता है जिसकी वजह से कोई भी जब आंखें खोलता है जिसको भी देखता है उसके प्यार में पड़ जाता है. सो एट लास्ट पक स्टेप फॉरवर्ड एंड थैंक्स एवरीबडी. एंड इस तरह से इन कॉमेडीज ऑल्सो एक कैरेक्टर टेल अस अबाउट हाउ लाइफ ऑफ द मेन कैरेक्टर इज गोइंग ऑन एंड कैसी उसकी लाइफ रहेगी. इसी तरह से हमने बादल सरकार का भी देखा था ना, एक प्ले जिसके अंदर लास्ट में कैरेक्टर आता है, नहीं हयावदना. हयावदना में भी जो हीरो जो एक स्टेज पे कैरेक्टर होता है, क्या नाम है उसका, भगत, आई थिंक भगत या भागवत ऐसे कुछ उसका नाम होता है. ही कम्स फॉरवर्ड एंड ही टेल्स कि ऐसे ऐसे करके जो पद्मावती है उसने सुसाइड कर लिया है ना, अपने आप को उसने डेथ के हवाले सौंप दिया. एंड जो घोड़ा है वो दोबारा से, जो जिसकी आधी बॉडी घोड़े की थी और आधी बॉडी ह्यूमन बींग्स की थी, वो पूरा प्रॉपर घोड़ा बन जाता है. एंड जो पद्मावती और जो हीरो का बेटा होता है उसको अब he is going to handle, है ना. so that is what epilogue is all about. इसी तरह से जॉर्ज ऑरवेल ने भी यूज किया है इसको. हरमन मालविले ने भी मोबी डिक में जब लास्ट में at the end Ishmael gives an epilogue where he gives details of how he survived after he was tossed from the boat by clinging to coffin. तो वो कहता है कि and I only and escaped alone to tell thee, कि मैं आप लोगों को एक कहानी बताने के लिए मैं सिर्फ अकेला बचा. सो अगर आपको हरमन मालविले का मोबी डिक याद है तो कैसे एक कैप्टन जो है वो मोबी डिक एक फिश के पीछे पड़ा होता है, कैसे जो है वो अपना पूरा सर्वनाश कर लेता है. एंड इश्मेल जो उसके साथ बोट पे होता है वो लास्ट में बच जाता है. सो ही इज टेलिंग अस हिज फेट कि मेरे साथ ये हुआ, एंड दैट इज एपिलॉग, राइट. सो 10 टर्म्स वी हैव डन. रिवाइज इट. ज्यादा करेंगे तो फिर हमारे दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है. यहाँ पे अगर किसी भी टर्म में कुछ इश्यू आता है तो यू कैन आस्क मी, और नहीं तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके नॉर्मल लाइफ से देख के इसको कनेक्ट कर सकते हो. ठीक है, ये सारी टर्म्स वो हैं जिनके ऊपर हमें एक या दो क्वेश्चन मिल जाते हैं, राइट. तो ये बहुत सर्च कर करके टर्म्स हमने निकाली हैं ताकि आप लोगों को अगर टर्म से कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ये ना लगे कि यार ये टर्म मुझे पता तो है बट मुझे एग्जैक्ट नहीं पता. ठीक.